Hi everyone, my name is Mohit Khan and welcome to all of you on my channel Pinnacle Study Group. And in this video, I'm going to start IAS and Punjab PCS preliminary mock questions current plus static for 2020, and this is my class number 5. So here is brief about me. So let's start with the class number 5. The question number 41 is on your screen because in the previous 4 classes we already covered 40 क्वेश्चंस. ठीक है, तो प्रीवियस 40 क्लासेस में हम 4 क्लासेस में हमने 40 क्वेश्चंस कवर कर लिए. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 41. सो क्वेश्चन नंबर 41 इज कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम. ओके, कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020 हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय. तो कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020 हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज. सो आंसर हियर इज द मिनिस्ट्री ऑफ द कॉर्पोरेट अफेयर. Company Fresh Start scheme is introduced recently by the Ministry of Corporate Affairs. So, Ministry of Corporate Affairs introduced the Company's Fresh Start scheme and the revised LLP settlement scheme 2020 to provide relief to law-abiding companies and limited liability partnership in the wake of COVID-19. तो LLP की full form यहाँ पर मैंने mention की हुई है. That is a limited liability partnership. So this ministry corporate introduced a company fresh scheme. So answer here is option number C. Again I'm repeating this question. Company fresh start scheme 2020 has been introduced by the Ministry of Corporate Affairs. Okay. Now the question number 42. You know this question is based on science and tech. Consider the following statement about acute encephalitic syndrome. जब भी word आप encephalitic word आएगा तो it is directly connected with your brain. Okay. Consider the following statement about acute encephalitic syndrome, AES. AES also introduced as a lychee virus in India. You know, थोड़े टाइम पहले बिहार में ये आपने न्यूज़ सुनी होगी that AES has known as a lychee virus. The causative agent of AES varies with the geographical location and season. This is the second option. And third is acute encephalitic syndrome. Complication may include memory loss, coma, and even death. So there are 3 options. So here is the explanation. So answer here is all of above. Why all of above? So let me explain each and every option. Because AES, that is a acute encephalic syndrome, has also known as a chumky fever or lychee virus in India. Okay, so please make sure you have to know the word lychee virus and the chumky fever. It is an umbrella term used for infections that causes inflammation, irritation or swelling on the brain. Okay, and apart from the sources like fungus, bacteria, chemicals, parasite, toxin, spirochetes to reported to the cause of AES over the past few decades. And viruses have also been attributed mainly to be the cause of AES in India. And in addition to viral encephalitic, severe form of the toxoplasmosis and the leptospirosis can cause AES. ठीक है, यहाँ पर और वर्ड है toxoplasmosis और the leptospirosis. Apart from this, the causative agent of AES varies from a geographical location and the season. So you can see that the AES varies from the geographical location as well as the season. And the logic behind the link between the lychee fruit consumption and AES that when children eat large amount of the unripe lychee fruit. Okay, तो ये बिहार में काफ़ी टाइम पहले न्यूज़ में मैंने आपको बताया था. तो जब बिहार के बच्चों में ये न्यूज़ क्यों हाईलाइट हुई थी, बिकॉज व्हेन दे ईट अनराइप लीची फ्रूट on an empty stomach, it may lead to the hypoglycemic encephalopathy, and this is the brain injury that cause prolonged or severe hypoglycemia or the low blood sugar. Unripe lychee has a toxin hypoglycin A and methylene psychopropylene glycine that cause vomiting if indigested a large quantity. Okay, so well nourished children are also not affected by the consumption of the lychee fruit. So you can see that the well nourished children are not affected by the consumption of the lychee fruit. So answer here is because AES also known as a lychee virus in India, and the causative agent of AES varies from the geographical location and the season, and AES compilation may include memory loss, coma and even death.
So answer here is 42D, all of above. Okay. Now the next question, question number 43. And again this question is based on the science and tech. Consider the following statement about the Earth R. Okay. Earth R ये WWF के द्वारा इनिशिएटेड है. तो यहाँ पर आंसर है फर्स्ट, क्योंकि अर्थ आर क्या होता है, अर्थ आर रिसेंटली ऑब्जर्व किया गया था मार्च में. ठीक है, मार्च 8:30 PM पे ऑब्जर्व किया गया था. जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 9:09 पे तक ना लाइट्स ऑफ करने को कहा था. तो ये इवेंट स्टार्ट हुआ था सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में, बट ये आज इवेंट पूरे यूरोप में, इवन पूरे वर्ल्ड में फेमस है, अर्थ आर. एवरी ईयर अर्थ आर ऑब्जर्व ऑन द लास्ट सैटरडे of March, and previously it brought to public out on the road to mark the hour, and this may famous environmental initiative when digital as man as country are in lockdown. So let me tell about what is the Earth Hour. You know, dating back to 2007, Earth Hour is a annual event organized by the WWF, that is a World Wildlife Fund. तो इनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है to promote conservation and the sustainable energy. And during this time, civilians are encouraged to switch off their lights for 1 hour to help the reduce the effect of global warming and raise awareness for climate change and the wildlife conservation. Okay, so you can see तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया हुआ है ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क. तो ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क के द्वारा ये इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं करवाया जाता, ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया जाता है WWF के द्वारा. तो सेकेंड ऑप्शन इनकरेक्ट है. एंड एवरी ईयर अर्थ आर इज ऑब्जर्व्ड ऑन द लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च. एग्जैक्टली, तो 2020 के 28 मार्च को ये इंट्रोड्यूस और ऑब्जर्व किया गया था. सो आंसर इज ए, ऑप्शन नंबर 1. नाउ द क्वेश्चन नंबर 44. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कम्युनिटी रिजर्व. तो कम्युनिटी रिजर्व ये क्वेश्चन है हमारा एनवायरनमेंट का. कम्युनिटी रिजर्व पे पूछा जा रहा है कि कम्युनिटी रिजर्व में कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं. पहली ऑप्शन है इट इज एस्टैब्लिश अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. क्या ये 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के अंदर इस्टेब्लिश की गई हुई है. और सेकंड ऑप्शन है एनी स्टेट गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर कम्युनिटी ऑन फॉरेस्ट एज अ कम्युनिटी रिजर्व. कोई भी राज्य की सरकार डिक्लेयर कर सकती है, एंड इफ लोकल्स आर विलिंग टू पार्टिसिपेट इन द कंजर्वेशन एफर्ट फॉर द सेम. अगर लोकल, वहाँ के जो लोकल पर्सन है, दे आर विलिंग. सो आंसर हेयर इज बोथ, बिकॉज ये दोनों चीजें करेक्ट है. बिकॉज यहाँ पर पूछा गया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन आर करेक्ट. तो आंसर इज C. Why? Because conservation reserve and the community reserve in India are terms denoting protected area of India which typically act as a buffer zone, okay, to connector and migrator corridor between established national park, wildlife sanctuaries, reserved and the protected forest of India. हमारे इंडिया में नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ओके, इनके अंदर जो बफर जोन्स होते हैं, ओके, उनको कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर किया जाता है. और ये इस्टेब्लिश किए गए थे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट एंड इट इनेबल एनी स्टेट गवर्नमेंट. कोई भी राज्य की सरकार डिक्लेयर कर सकती है अगर वहाँ के लोकल पीपल विलिंग है पार्टिसिपेट के लिए. ओके, सो आंसर हियर इज सी, बोथ 1 and 2. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज एन आर करेक्टली मैच. ओके, कौन से ऑप्शन यहाँ पर करेक्टली मैच है. यहाँ पर प्लेसेस इन न्यूज़ है और यहाँ पर ओशन है. फर्स्ट प्लेस है यहाँ पर रीयूनियन आइलैंड, इंडियन ओशन. एजम्पशन आइलैंड, साउथ पैसिफिक ओशन. एंड द फॉकलैंड आइलैंड इन द साउथ अटलांटिक ओशन. ओके, तो 1 2 3. रीयूनियन आइलैंड, इंडियन ओशन. एजम्पशन आइलैंड, साउथ पैसिफिक ओशन. एंड द फॉकलैंड आइलैंड, साउथ अटलांटिक ओशन. तो 1 by 1 मैं बता देता हूँ कौन कौन से आइलैंड. तो फॉकलैंड आइलैंड आर ऑल्सो नोन एज ए मालविनास आइलैंड और अ स्पेनिश इसलास मालविनास, इंटरनली सेल्फ गवर्निंग ओवरसीज टेरिटरी ऑफ द यूके इन द साउथ अटलांटिक ओशन. क्लियर. तो ये साउथ अटलांटिक ओशन में आपकी, यू कैन सी, एग्जैक्टली हियर इज अ पिक्चर कंप्लीट. तो फाकलैंड, तो फाकलैंड वाला ऑप्शन तो यहाँ पर गलत हुआ क्योंकि यहाँ पर था साउथ अटलांटिक ओशन एंड यहाँ पर साउथ अटलांटिक ओशन, सॉरी, यस, थर्ड इज करेक्ट. थर्ड इज करेक्ट बिकॉज यहाँ पर साउथ अटलांटिक ओशन है, तो हियर इज द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट.
ओके, फाकलैंड दैट इज अ साउथ अटलांटिक ओशन। नेक्स्ट ऑप्शन में पूछा गया हुआ है एजम्पशन आइलैंड। तो एजम्पशन आइलैंड इन इंडियन ओशन। ओके, इंडिया में लोग अज्यूम बहुत करते हैं ना, वैसे याद रख लो ना, इंडियन ओशन में लोग काफ़ी एज्यूम्स करते हैं। तो ये है एजम्पशन आइलैंड। तो एजम्पशन आइलैंड ये ऑप्शन आपका गलत गया। तो साउथ पैसिफिक नहीं है, ये हमारा है इंडियन ओशन में। एंड री यूनियन आइलैंड, और री यूनियन आइलैंड भी हमारा इंडियन ओशन में है। ओके, री यूनियन आइलैंड दिस इज ऑल्सो इन इंडियन ओशन। तो फर्स्ट एंड थर्ड बोथ आर करेक्ट। तो री यूनियन आइलैंड एंड assumption island both in Indian Ocean and the Falkland South Atlantic Ocean. You can see the picture here. Okay, you can see the picture here. So answer here is A. Now the question number 46. Garia festival is an important festival for the tribal community of which state? गारिया फेस्टिवल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है ट्राइबल कम्युनिटी का। ओके, तो ये कौन से स्टेट की ट्राइबल कम्युनिटी के साथ लिंक्ड है गारिया फेस्टिवल? सो आंसर है त्रिपुरी ट्राइबल इज इन त्रिपुरा। गारिया फेस्टिवल, तो यहाँ पर मेंशन किया गया हुआ त्रिपुरा। ओके, मानिक सरकार पहले वहाँ के सीएम थे, अब है बिप्लाव देव त्रिपुरा के। तो गारिया फेस्टिवल इज एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द त्रिपुरी ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ द स्टेट एंड द गारिया डांस इज अ वेरी पॉपुलर अमंग द त्रिपुरी एंड द रयांग कम्युनिटी। तो रयांग कम्युनिटी भी त्रिपुरा की कम्युनिटी है, ये पीपीटीजीस में आती है। And symbolically the worship of the deities as well as the socio-economic activities of the household, and these dance represent hunting, fishing, food gathering and various other activities. And the Garya Puja usually held from the beginning of the last day of the month of the Chaitra till the 7th day of the month of April, that is a Vishak. Clear? So here answer is a Tripura Garya festival. Now question number 47. Consider the following statement. तो यहाँ पर एक इंटरनेशनल इश्यूज था नेबर कंट्री के साथ, बांग्लादेश के साथ। और यहाँ पर है पेट्रापोल इज द इंडियन साइड ऑफ द पेट्रापोल एंड बेनापोल बॉर्डर चेक पॉइंट बिटवीन इंडिया एंड बेनापोल ऑफ बांग्लादेश। ओके, तो पेट्रापोल एंड द बेनापोल, लेट मी शो यू द पिक्चर हियर। तो हियर इज द पेट्रापोल, हियर इज द बेनापोल। तो पेट्रापोल इंडिया में है, वेस्ट बंगाल में, और बेनापोल है बांग्लादेश में। क्लियर? तो हमारा स्टेटमेंट क्या कहा गया हुआ है? पेट्रापोल इज ए इंडियन साइड। तो पेट्रापोल बिल्कुल इंडियन साइड में है और बेनापोल बांग्लादेश साइड में। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हुआ। क्लियर? सेकंड ऑप्शन कहा गया है रिसेंटली इंडिया हैज एक्सटेंडेड अ लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द मोंगला पोर्ट ऑफ द बांग्लादेश टू एनहांस द कनेक्टिविटी इन द BBIN रीजन। सो पेट्रापोल और बेनापोल एक बार प्रॉपर्ली डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। पेट्रापोल एंड द बेनापोल जॉइंट रिट्रीट सेरेमनी वाज इनॉग्रेटेड ऑन 6th of November 2013 by the Home Minister at ICP Petrapol in the presence of a Home Minister of the Bangladesh. Clear? It is a daily military exercise similar to the Wagah border, जैसे हमारे अमृतसर में वाघा बॉर्डर डेली रिट्रीट सेरेमनी होती है वैसे होती है। एंड इंगेज सोल्जर्स ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इंडिया एंड द बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश। तो इंडिया की तरफ से BSF और बांग्लादेश की तरफ से BGB। एंड बांग्लादेश एंड इंडिया शेयर अ 4096 किलोमीटर लॉन्ग इंटरनेशनल बॉर्डर, द फिफ्थ लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर इन द वर्ल्ड, एंड इंडिया का तो ये सबसे लार्ज होगा। एंड वेस्ट बंगाल विद शेयर विद बांग्लादेश। क्लियर? तो इसका आंसर हमारा है फर्स्ट एंड सेकंड। असम शेयर लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद द बांग्लादेश, ये गलत है, असम का नहीं होता क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर शेयर कर रहा है वो वेस्ट बंगाल है। तो वेस्ट बंगाल विद द 2217 किलोमीटर लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद द बांग्लादेश। क्लियर? उसके बाद असम का सिर्फ 262 किलोमीटर ही आता है। क्लियर? तो फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, बट थर्ड इनकरेक्ट है क्योंकि ये रिसेंटली करंट अफेयर में था। और इसमें क्या है कि इंडिया ने लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सपेंशन ऑफ द मोंगला पोर्ट ऑफ द बांग्लादेश। क्लियर? नाउ द क्वेश्चन नंबर 48. द वर्ड हिंदू एज अ रेफरेंस टू द पीपल ऑफ हिंद और इंडिया वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय, यू नो, हिंदू नाम जो पड़ा है इंडिया का वो सिंधु रिवर से पड़ा है, सभी को पता है। रिवर है सिंधु, और सिंधु रिवर इंदस को कहा जाता है बिकॉज इंदस में सिंधु वैदिक नेम है उसका, और सिंधु को लोग प्रोनाउंस करते थे हिंदू से, और इंदस रिवर से ईस्ट में जितने भी लोग थे उनको हिंदू लोग कहा जाता था। बट राइट नाउ हिंदू इज अ रिलीजन। तो ये आंसर है अरब। अरब वाज द फर्स्ट।
The name of India is a corruption to the word Sindhu, and Sindhu is the name of the river Indus, which were mentioned in the Rig Veda, and neighboring Arab, okay, Iranian uttered S as a H and called the land Hindu, and the Greek pronounced the name as a Indus. तो ग्रीक ने तो इनका नाम हिंदस डाला था, बट अरब ने हमारा सिंधु को हिंदू कह दिया था, इसलिए जो हिंदू नाम पड़ा हुआ है वो सबसे पहले अरब्स ने यूज किया हुआ है, ठीक है, ग्रीक नहीं है, ग्रीक इंदस है। क्वेश्चन नंबर 49, द संस्कृत प्ले रिटन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड में जो संस्कृत प्ले लिखा गया हुआ है या लिखा जाता था, उसमें वुमेन और जो शूद्र थे वो कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे? वुमेन एंड शूद्र ये कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे इन द गुप्ता पीरियड ड्यूरिंग द एंशियंट हिस्ट्री? क्लियर? तो यहाँ पर आंसर है संस्कृत। प्ले ऑफ गुप्ता पीरियड वुमेन एंड शूद्र स्पीक प्राकृत। जो वुमेन थी और शूद्र थे ये प्राकृत लैंग्वेज यूज करते थे, और जो एलीट क्लास थी, एलीट मतलब हाई लेवल, वो संस्कृत यूज करती थी। ओके, तो संस्कृत प्ले में ये मेंशन किया गया हुआ है। सो इन द संस्कृत प्ले written during Gupta periods, women and Shudra speak a Prakrit language, where elite class use Sanskrit language. Okay, ये था question number 49. Now the question number 50, the last question is on your screen. Which of the following statement regarding Ashokan stone pillar is incorrect? यहाँ पर ऑप्शन पूछा गया हुआ है incorrect. Clear? कि अशोका का जो स्टोन पिलर है, यू नो अशोका के पिलर्स की बात करें, वो नीचे शाफ्ट होता है, शाफ्ट के ऊपर अबैकस होता है, अबैकस के ऊपर फिर 4 लाइंस होते हैं, तो ये इस तरह का मोनोलिथिक स्टोन, तो दे आर हाईली पॉलिश। यस, ये तो करेक्ट है, हाईली पॉलिश है। दीज आर मोनोलिथिक, मैंने भी वर्ड बताया, एक ही ये स्टोन से बने होते हैं, ये भी करेक्ट है। द शाफ्ट ऑफ पिलर इन टेपरिंग इन शेप, जो इनका शाफ्ट होता था थोड़ा सा टेपर होता था, ओके, टिल्टेड इस तरह से। क्लियर? एंड दे आर द पार्ट ऑफ द आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर। नो, ये आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं था, ये उनके दम्मा डॉक्ट्रिन का पार्ट था। अशोकन स्टोल पिलर वर मीन फॉर स्प्रेड हिज दम्मा, दम्मा मतलब उनकी डॉक्ट्रिन। क्लियर? आप उनका रिलीजन कह सकते हो, बट उन्होंने डॉक्ट्रिन वर्ड ज़्यादा यूज़ किया गया वो दम को, तो नॉट द पार्ट ऑफ द आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर। तो आंसर है डी, क्योंकि यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया था। ओके, सो इन 5 classes we cover 50 questions. In upcoming classes we also come with more questions, and there are a lot of videos on my YouTube channel, so kindly share my videos, like my videos. Okay, so this is for today in this video. I will come more videos in future classes. Thank you.